I now declare the 35th IRMA convocation open. Sangachadvam Sangvadadvam Sangvomana Sijanatam Sangachadvam Sangvadadvam Sangvomana Honorable Minister Shri Nitin Gadkari, our chief guest for the convocation, Chairman Shri Nandkumar ji, the esteemed members of the Board of Governors of IRMA, Shri Dilip Bhai Patel, Member of Parliament, and Shri Dev Singh Chauhan, MP and Member of Parliament, the graduating batch, their family and friends, faculty and staff colleagues, guests from the media, my warm greetings to all of you. We welcome you to the 35th convocation of IRMA. It is a great privilege for me to address this august gathering. It is a matter of great pride that IRMA is graduating the 35th batch of its flagship program, the Postgraduate Diploma in Rural Management, and the Fellow Program in Rural Management, a discipline that IRMA pioneered
The great visionary Dr. Varghese Kurian created IRMA, the youngest among the institutions created by him, originally conceptualized to produce professional managers for the cooperative sector. On his sad demise in 2012, IRMA instituted an annual Dr. Varghese Kurian Memorial Lecture series to be delivered by eminent persons on his birth anniversary. The first Varghese Kurian Memorial Lecture was delivered by Professor M.S. Swaminathan, eminent genealogist and Member of Parliament, in 2012. This year, Professor Arvind Subramaniam, Chief Economic Advisor, Government of India, delivered the Varghese Kurian Memorial Lecture in November 2015. I'll briefly present a few highlights of the academic year at IRMA. IRMA embarked on an ambitious expansion program in the last couple of years. With AICTE approval, we expanded our batch size of our flagship postgraduate diploma program in rural management. To accommodate the larger size, Shri Pranab Mukherjee, the then finance minister, approved a grant of Rs 25 crores from the union budget in 2012. This grant enabled the infrastructure expansion to accommodate the larger batch. We have built 4 hostel blocks, and a 5th one is to be completed in August. We have added a new mess complex, an academic complex with 4 modern classrooms and multi-purpose hall with a seating capacity of 160. We have completed the resurfacing of all internal roads. We are thankful to the building committee, the GMS state, the team for this achievement. We are grateful to the NDDB for agreeing to take up this as a turnkey project with no cost to us, and for the NDDB team who provided active support for the timely completion of this project. Every participant who is admitted to IRMA is ensured a financial support in case he or she requires it. Further, IRMA has been offering scholarships to graduates who choose to work in the development rural sector for organizations that are unable to pay the remunerative salaries. We have continued our efforts at raising scholarships to cover the EMI of student loans who are willing to get to work with the development sector organizations. We had approached the Ministry of Rural Development and various funding agencies and other organizations for scholarships to fulfill this mission. This year, the Tata Trusts have instituted the Sector Incentive Scheme with scholarship of 3 lakhs per year for 3 years to IRMA graduates who volunteer to work for 3 years in the rural sector organizations. This grant will commence in October 2016 to February 2021. This graduating batch is the first beneficiary of this scheme. IRMA organized an international conference on agribusiness and emerging economies in January 2016. This was organized in collaboration with the Whitman School of Management and the South Asia Center at the Syracuse University, USA, and the Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Countries. The NDDB, GCMMF, Tata Trust, Yes Bank, NCDF, the eMarkets Limited were sponsors for the conference. And the conference was attended by 150 participants from all over India and abroad. Participants from abroad included from Uganda, USA, and Sri Lanka. 84 participants presented papers on themes in agribusiness, which included marketing, public policy issues, dairy cooperatives, supply and value chains, contract farming, finance, innovation, and entrepreneurship. A large number of MOUs have been signed and research and consulting assignments have been undertaken. One of our ambitions is to set up an incubator. The minister was just asking me whether we have entrepreneurs coming out of our institute. We definitely have. And our ambition is to set up an incubator to incubate social entrepreneurs and enterprises. Towards this end, we won a competitive grant from the British Council, and in collaboration with the Hive, Nottingham University, UK, and we have also applied to the Department of Science and Technology, Government of India, under their iState program to fund the incubator. We will formally launch this incubator in August 2016. JP Morgan Limited had awarded IRMA a large grant for an 18-month program to build the financial capabilities of individuals from low-income households. As part of the program, implemented in partnership with the Grameen Foundation of India, IRMA will investigate the reasons for dormancy in bank accounts, as in the PM's Jan Dhan Yojana, held by low-income households, and the usage of digital financial services among the same population. IRMA entered into an agreement with the National Hydropower Corporation, NHPC, to work on promoting collective enterprises, farmer-producer organizations,
for livelihood augmentation in the command area of the Subantri Dam in Assam. This collaborative action research envisages participation of NHPC, district administration, and communities, and will identify sector-based value chains, climate-resilient livelihood opportunities for creating productive assets to be owned by the communities in this region. IRMA and the Tata Trust have undertaken a collaborative research to undertake the effects of the systems of rice intensification, SRI, on various dimensions of the quality of life, for instance, social capital, social networks, and women empowerment. A key factor in the success of all these rural projects undertaken by our faculty and students is the provision and access to adequate infrastructure and services. A key component is a robust network of physical transport infrastructure such as roads, highways, and transport services. Rural roads and highways facilitate access to schools, health centers, markets, and improve economic opportunities. They boost agricultural growth and non-farm activities, which are the main economic activities and backbone of rural life. IRMA also has a Center for Rural Infrastructure and Corporate Social Responsibility, among other centers of excellence at IRMA. IRMA conducts executive training programs for the cooperatives and corporates working for the rural sector. In October 2015, an MOU was signed between IRMA and Fullerton India Credit Company Limited for a long-term training program for training the middle-level executives and preparing them to assume higher managerial responsibilities. FICCI, the Fullerton India, is a financial intermediary in the rural and semi-urban markets, and IRMA is a lead educational institution in management skill development in the service of rural India. These are a few among all the activities other than teaching that IRMA and its faculty undertake. The student community engages in many extra and co-curricular activities, which I am not going to list here. But this year we held UDAN, the Bee School Fest of IRMA, in November 2015. This had the tagline, Unfurl the Spirit. UDAN aimed at providing a platform where participants from premier Bee schools came together and presented brilliant ideas to benefit the rural community and society. UDAN covered all spheres of management, from marketing, operations, finance, HR, public policy and governance, general awareness, industry knowledge, to the much emphasized and important areas of livelihood and sustainable development. The eminent speakers for this session were Mr. Yashwant Sinha, former finance minister who inaugurated UDAN 2015, and Dr. Urjit Patel, Deputy Governor, Reserve Bank of India, among many others. Today we are assembled here to celebrate the graduation of the class of 2016, PRM 35 as they are fondly called. That is the flagship program, the postgraduate diploma in rural management. Placements for this program has always been 100% at IRMA. This year over 350 jobs offers were received for about 100 recruiters, while 13 participants had accepted pre-placement offers made to them during their internship phase. One was a sponsored candidate and 4 opted out of the placement program this year. We are also gathered here to graduate our participants from the fellow program in rural management, and this year we have 2 of our fellow participants graduating and being awarded the fellow degree from IRMA. Dear participants, it is a happy occasion to see another batch of IRMans go into the real world. You are the ambassadors of IRMA, adding to our brand value. We are sure you will stand up to the ideals and spirit of cooperation that you have imbibed through your tenure with us and participate in fulfilling the mission of IRMA towards the betterment of the lives of rural people. I wish the graduating FPRM fellow students and the PRM participants a wonderful, intellectually stimulating, and emotionally satisfying career ahead. Thank you, and Jai Hind. May I say once again, Honorable Minister, how privileged we are to have you amongst us today. May I present to you the class of 2016, each one equally bright, motivated, and raring to go. May I request our chairman, Sri Nand Kumar, to place the Angavastram on their strong shoulders, and may I request the chief guest to bless the participants of the fellow program and the postgraduate program
in rural management and present them their diplomas. On the recommendation of the Academic Council and approval of the IRMA Board of Governors, 2 participants of the Fellow Program in Rural Management are to be conferred the title Fellow of the Institute of Rural Management, Anand. I would like to call their names one by one. Mr. Satyendra Nath Mishra. Mr. Atik Sheikh. On the recommendation of the Academic Council, the Board of Governors has resolved to admit 195 participants to the 35th annual convocation and award them the postgraduate diploma in rural management. 172 of them are here to receive it in person, and 23 of them are being awarded in absentia. The graduating participants are invited to come on stage as I call out their names. Preeti Mala, Harshita Singh, Shikha Pamnani, Sukanya Dasgupta, Sukriti Mehta, Ruchi Chandalia, Dipti Ravindran, Kanak, Nikita Tyagi, Neha Anand, Ratan Raj Lakshmi, Nishi Shamir Shah, Paridhi Chanchani, Preet Hemant Gandhi, Ranju Tulsi Purti, Deepika Yadav, Nishita Gupta, Pooja Paramahamsa, Harita SK, Anchal Agarwal, Ankita Khare, Jayati Vashisht, Jitendra Pal, Medha Srivastava, Nivedita, Sharadeep Ghosh, Mridalini Bhargava, Shruti Giri, Minakshi Chikara, Disha Meshram,
दिव्या वाधवा, दीपा परियानी, देशना गोयल, हर्ष ठाकुर, राकेश केशरी, सुहाग मणिलाल परेख, मिताली बरगली, अखिल जी, अल्फी सुलेमान, जिजीविशा खत्री, निष्ठा साचन, वर्षा ढकर, कनिका, श्रेयांशी वोरा, सुरभि, अरण्या सेन, प्रियंका मिश्रा, शबौर्णी पोद्दार, यशस्विता राठौड़, ईशा दास, ऋषभ सैनी, श्वेतल प्रवीण भसीन, आदर्श गोविंद, नेहा परख, वंदना रविंद्र, वान्या राय, श्रृंखला सिंह, सुरभि दहिया, वैभव प्रकाश लोहकरे, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सिंह, आकृति शर्मा, ज्योति कासवान, क्षेत्र मोहन साहू, शेफाली विजयवर्गीय, विनायक राजीव, भरत परमार, ज्योतिस्मिता देवी, नम्रता शर्मा, सोनल दीवान, अजिता श्रेया, धम्मपाल श्यामराव वाकले, मिलन यतीन कुमार संघवी, पवन भट्ट, राहुल वर्मा,
अजय कुमार अहिरवार, प्रशांत कृष्णमूर्ति चेलुमला, वेंकटा संपत कुमार दोरा, चिन्मय हैत, मोहम्मद इरफान अली, राघव बंसल, एस कंदन नटराजन, शम्स खान, मंजूर मजर खान कनुगा, अनिरुद्ध, आदिशेष विक्रम क्षेत्री, अभिनव सोनी, अवधूत राजाराम करांडे, किरण प्रकाश ढोले, हरिशंकर एम, नागेश बूदिडा, राज अग्रवाल, विकास, रजत आनंद, सौरव आनंद, उत्सव देवेन मिस्त्री, संदीप अग्रवाल, जनिल शंकर जैन, सुब्रतो बागची, वैभव छाबरा, आशीष विजय सिंह, अभिषेक सिंघल, अनीश नायर, हर्षल चड्ढा, पल्लवी दत्ता, रवि कुमार, जयदीप कुमार ओझा, सुमित झंवर, स्वप्निल गुणवंत पतंगे, दीप्तेश विक्रम, गौरव खंडेलवाल, पराग कुलश्रेष्ठ, पवन घोसलिया, पीयूष सिंह, प्रत्युष जेना, रचित श्रीवास्तवा, रोहित भारती, साहिल जैन, शैलेश पीआर, अक्षय गुप्ता, अनुज वर्मा,
निपुण, सरोज कुमार बेहरा, शरद वीएस, शुभम गर्ग, अभिषेक कुमार, हिमांशु अग्रवाल, कृणाल सुभाष ठक्कर, मनु वतायन, निश्चल जैन, पद्मेश पीपी, प्रशांत कुमार कनौजिया, शेख मोहम्मद नसीर हुसैन, तेजा चिंतला, विवेक शशिधरन पिल्लई, गोविंद सिंह धामी, शिवांग गोयल, मंगेश तिकाराम कबगते, सीराम, केतन मानेक, पीयूष दारक, रवि किरण, सौरभ राय, लोहित मोहन, उदित गोयल, अवीक बिस्वास, नितेश कुमार गुप्ता, विष्णुदत्त जी, रचित तिवारी, भद्रेश अंबालाल प्रजापति, मनीष अशोक घोलप, अर्पण दत्ता, गौरव चौधरी, गौतम पृथी, विकास गुलिया, हितेश यादव, चिरंजीव शर्मा, धर्मेंद्रन गोविंदराज, धीरज ढिंगरा, नितेश राजकुमार सजवानी, हार्दिक अरविंद चौधरी, हिमांशु भट्ट, श्रेष्ठ कुकरेजा, ईशान सरीन, कुमार निशांत,
Gurram Aveen, Hitesh Kumar Prasad, Sarthak Harshad Rai Shah, Amal John, Abhimanyu Dhankar, Arghya Chaudhary, Kaushik Ghosh, Rohan Kumar S. Thank you. The Kuchibhotla Vasanthi Foundation was started in the memory of an IRMA graduate, late Kuchibhotla Vasanthi, who immediately after completion of the program in April 1997 joined Gram Vikas, a non-government organization in Orissa. She died in an unfortunate accident in 1997. Her parents, family, and members, friends, and well-wishers started her foundation in her name to realize her dreams and goals. The foundation decided to award a gold medal to the topper of the graduating students of our 2-year postgraduate diploma program in rural management each year. This year's awardee is Mr. Shresht Kukreja. May I please request Mr. Shresht Kukreja to come on stage and receive the Kuchibhotla Award from the hands of the chief guest. Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari, my fellow Board of Governors, Members of Parliament Shri Dilip Bhai Patel and Shri Devi Singh Chauhan, faculty of IRMA, graduating students, their parents, media, and all the guests present here. Let me join the director in welcoming Mr. Gadkari to this convocation. It's been a very busy week for him, and he has found time to be with us today. And we welcome you, sir, both to IRMA and to the NDDB campus. We are aware how busy you are in shaping the economic policy of the country. And more importantly, I think these children today graduating should learn from you how to accelerate development, because you are known to press the pedal to the floor in most of your development programs. IRMA has so far produced more than 2,000 professionals, and they have all, with a few exceptions, worked in rural India, trying to get the development of rural people as their primary agenda. IRMA is a unique institution, different from any other management institution, and they head major organizations. In fact, Mr. Sodhi from GCMMF is here. There are NGOs which they are heading. They are also in the sectors of IT and FMCG groups, and some of the IRMANs are represented on our board.
It's a unique discipline. It's for the first time that rural management was thought of as a separate discipline, as different from many of the management institutions that were there at that time and subsequently proliferated. But I think this institution is very, very relevant in the Indian development context, because governments and the current government have been trying to come out with a number of schemes which will lift up rural people out of their current condition. But while government lays down policy and announces schemes, the access to most of this is dependent on the institutions that you are able to create. For instance, it has been found that the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, which was launched during Atal Bihari Vajpayee's time, I remember there was a very major presentation at that time showing how this will impact rural prosperity. In fact, there is sufficient body of evidence to suggest that investment in rural roads and investment in R&D in agriculture are the two best investments possible to lift people out of their current state of life in rural India. So for most of you who are trained to be institution builders, I think it offers tremendous amount of opportunities to impact the lives of people whom you have chosen to serve. And many of you, I know, would be tempted to compare yourself with the CTC of other management institutions. But let me tell you from personal experience that beyond a point, wealth doesn't make a difference to you. It's not to say that you should live in poverty. It is to say that chasing higher CTCs in your career may not be the best, because at some point in time, you will realize that you would measure your achievement by the happiness that you have derived and the impact that you have created. And today, you will be facing probably more challenges. And one of the things that I want to mention about Irmans, and Irmans whom I have met from various, the first batch down to probably the 30th or 31st batch, one thing that makes them stand out is their undying commitment to the people's prosperity. At every level that I have interacted with them, that's one thing, irrespective of whether they are in a private sector, whether they are in the public sector, they are in a cooperative, they are in an NGO, they talk very passionately about lifting the rural people out of their current levels of economic stagnation. So this is one quality that all Irmans possess, and I'm sure that you do possess that in abundant measure, and you will go out and make changes. Now, to make that change, especially in a climate where two things are changing very fast. One is the climate itself, the climate change impacting a lot of people. The other is technology. And I believe that you are the right set of people to make this technology useful to the people and in combating all that, including climate change. So again, I would suggest to you that building strong institutions, preferably owned by farmers, preferably owned by the beneficiaries, is what will ensure that the people get the best out of all the government schemes. To the students, I do congratulate you on what you have achieved. And today, your student life is over. From tomorrow, I know that many of you are joining on the 1st of June. From tomorrow, you are responsible officers of an organization. Some of you may be CEOs, some of you may be at decision-making levels. So this little Angavastra on your shoulder and the degree in your hand has actually become signs of responsibility, because now people will look at you. Yes, a new Irman has come into our organization. How is it going to affect our lives? How are they going to deliver? I think this is the challenge that you need to understand today. And I wish you all the best. Go out into this world, believe and be confident that you are an Irman. You can impact societies, you can create fluorescence, you can make change visible, and go with no fear in your mind and full of confidence
And we would love to see you make a very, very big impact in the lives of people who deserve it much more than many others in this country. I wish you all the very best. Now, may I request the Honorable Chief Guest, Sri Nitin Gadkari, to deliver the convocation address. माननीय चेयरमैन इरमा, डायरेक्टर इरमा, मेरे सहयोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिलीप भाई, देवी सिंह जी, सभी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के गवर्नर काउंसिल के मेंबर, विद्यार्थी मित्रों, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको आज के इस शुभ दिन पर, जिसमें आपने आपके जीवन में जो महत्वाकांक्षा रखी है, उसके अनुसार आपने शिक्षा पूरी करके जो डिग्री हासिल की है, इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। इस इंस्टीट्यूशन में आने की बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, पर मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं भी विशेष रूप से पिछले 15 साल से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में काम करता हूं, और वहाँ की समस्या को देखकर उसमें कैसा समाधान ढूंढना चाहिए, ये बहुत बार मेरे चिंता का विषय होता है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, वहाँ ज़्यादातर किसानों ने बड़े प्रमाण पर आत्महत्या की है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ की परिस्थिति कैसे बदले, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से आपके यहाँ आकर कुछ नई बात मुझे सीखने के लिए मिलेगी, तो उसका अनुभव लेकर मैं अपने क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकूँगा, इस भावना से ही मेरी आने की इच्छा थी। आज हमारे देश में हमारी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था अनेक संकटों से गुजर रही है। एक समय महात्मा गांधी ये कहते थे, और उस समय हम लोगों की स्थिति भी वैसी थी कि हमारा देश यानी ग्रामीण भारत है, क्योंकि 90% आबादी गांव में रहती थी। पर आज 68 साल होने के बाद केवल 65% आबादी ऐसी जो गांव में रह रही है, और करीब 25 से 30% आबादी जो है वो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में आई है। गांव से लोग खुशी से नहीं निकले हैं। गांवों की समस्या है कि गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छे रोड नहीं है। कभी कभी गांव में ऐसी स्थिति होती है कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। दवाखानों की हालत भी ऐसी है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत है। ना स्कूल है, ना अस्पताल है, न रोड्स है। अभी चेयरमैन साहब उल्लेख कर रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था सार्वजनिक बांधकाम विभाग का, तब मुझे एक मौका मिला। मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुंबई का बनाया, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उस समय बनाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था, और मुझे कहा था कि आप 2 योजना तैयार करो, एक हर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो, और दूसरी योजना राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने वाली करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन उस समय थे, रूरल डेवलपमेंट के कुछ अधिकारी थे, स्टेट गवर्नमेंट के थे, और उसके बाद में जो एक रिपोर्ट तैयार हुआ वो मैंने वाजपेयी जी को दिया था। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला।
ये योजना जब वाजपेयी जी को दी तो दुर्भाग्यवश सच्चाई है कि हमारे यहाँ वो शेतकरी किसान संगठन के नेता शरद जोशी कहते थे कि दिल्ली और मुंबई ये इंडिया है और गांव में बसे लोग भारत हैं। और मैं भी दिल्ली में अनेक सालों से भी रह रहा हूँ, पर दिल्ली में गांवों की आवाज़ नहीं पहुँचती और काम करने वाले जो सिस्टम है, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेसी है, वो ग्रामीण समस्याओं से कोसों मील दूर है। ग्रास रूट लेवल पर गाँवों में की जो समस्या है उसका पता न मीडिया को है, न ब्यूरोक्रेसी है, न पॉलिटिशियंस को है। और इसके कारण ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए जो समस्या का निदान होना चाहिए, वो जिस प्रमाण में होना चाहिए उतना नहीं होता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गाँवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ ये 2002 या 3 की होगी, तो देश में 1,04,000 करोड़ जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि गांव में रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, किसान फल फूल सब्जियां शहरों की तरफ ले जा सकेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू होगी। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में गाँव को जोड़ने वाले रोड को प्राथमिकता नहीं मिले। हमने हमारे देश में 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए, पर गांव में आज भी पीने के लिए पानी नहीं और खेती के लिए पानी नहीं है। और इसलिए हमारी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, इसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग जो इसमें अध्ययन करके आगे आएंगे वो काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। और डॉक्टर कुरियन जी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि एग्रीकल्चर और रूरल क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें सही विजन से चलना होगा। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान कर सकते हो पर दृष्टि दान नहीं कर सकते। एंड द लैक ऑफ द विजन फॉर एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूँ सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। हमारे मुंबई में बर्तन मांजने के लिए जो राख मिलती है फ्लैश, वो 18 रुपये किलो के भाव से मिलती है और गेहूँ और चावल की कीमत 14 और 15 रुपये पे घूम रही है। केमिकल फर्टिलाइज़र के भाव 4 गुना बढ़े हैं और गेहूँ और चावल के भाव 2 रुपये किलो से बढ़े हैं। तो जो सस्टेनेबल लाइफ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे देश के विकास में जो हमारा जीडीपी आता है उसमें से मुश्किल से 8 से 14% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है। स्वाभाविक रूप से हमारे जो पॉपुलेशन है उसके दृष्टि से हमारा जो इनकम है वो कोई तालमेल नहीं खाता। और इसीलिए हमारे देश को अगर हमको आगे खड़ा करना है और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर खड़ी करनी है, तो हमें ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का जब तक पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, गांव गरीब मजदूर और किसानों के हितों के लिए नीतियां नहीं बन पाएगी, तब तक इस देश के भविष्य को बदलना बहुत कठिन होगा। और इसलिए आज हमारे क्षेत्र में हमारी सोच में भी काफ़ी बदलने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है विकास की, उसकी समस्याओं में आज क्या आवश्यकता है ये सबसे प्राथमिकता से सोचना होगा और उसके आधार पर नीति बनानी होगी। हमारे विकास के 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर। अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए तो सबसे पहले इरिगेशन चाहिए, पावर चाहिए, सीड फर्टिलाइज़र चाहिए और कैपिटल सस्ते इसमें चाहिए। इस साल के बजट में हमारे वित्त मंत्री जी 9 लाख करोड़ ये प्रायोरिटी सेक्टर है एग्रीकल्चरल क्रॉप फाइनेंस के लिए रखा हुआ है और 20,000 करोड़
इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए रखा है। और इसलिए अनेक राज्यों में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग 0% इंटरेस्ट से भी एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं। पर ये सब होने के बाद भी जितने परिणाम और अच्छे निकलने चाहिए अपेक्षा के अनुरूप वो नहीं निकल रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में स्वाभाविक रूप से रोड चाहिए, पावर चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए। और मैं जब एग्रीकल्चर में काम करता हूँ तो ये मेरे ध्यान में आया कि सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। और पानी की समस्या ये देश की समस्या नहीं है। हमारे देश में टोटल इरिगेशन 46% है। 46% में सबसे कम इरिगेशन है झारखंड में 5.6%, महाराष्ट्र में 18.6%, मध्य प्रदेश अब 31% है, गुजरात शायद 32% से ऊपर पहुंचा है। हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है वो केवल 11 राज्यों से संबंधित है। उसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड पार्ट है। कुछ जगह पर समस्या जो है, जो पानी ज़्यादा होता है इसके कारण समस्या है, और कुछ जगह पर पानी नहीं है, ये हमारी समस्या है। और आज की स्थिति में ऐसी है कि जिन्होंने पानी में अच्छा काम किया है उन्होंने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का चित्र बदला है। गुजरात में 5 लाख चेक डैम, जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख चेक डैम बने। नर्मदा का पानी आया और उसके बाद में आज गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, कृषि विकास दर 14% से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में यही काम किया गया और पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। पिछले साल मध्य प्रदेश के कृषि विकास का दर 23% था, इस साल 20% है। और हमारे महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट है, शुगर फैक्ट्री है, सब कुछ होने के बाद भी हम 4% तक नहीं छू सके, बीच में तो माइनस था। और इसका जो कारण है कि पानी नहीं है। जो बरसात का पानी आता है उसमें से 10 से 15% पानी लेक और तालाब में जाता है। 10 से 15% पानी जो है वो कंजर्वेशन होता है, ज़मीन के अंदर जाता है, और करीब 70% पानी समुद्र में बह जाता है। समुद्र में जो पानी बह जाता है उसके लिए झगड़ा नहीं हो रहा है, पर ये 10 से 15% पानी पे कौन अधिकार जगह, इसके लिए लवाद बने हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दुनिया भर के राज्यों के बीच के झगड़े चल रहे हैं। और इसलिए वाटर कंजर्वेशन के बिना हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र का चित्र नहीं बदल सकता। और इसलिए आज विशेष रूप से जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उनकी जो पानी का नियोजन है हमारे लिए समस्या है। अब नर्मदा का समुद्र में पानी जा रहा था, वो रोककर गुजरात के कच्छ में गया, पर ये अच्छे काम करने के लिए कितने लोगों ने कितना विरोध किया इसका अनुभव गुजरात ने किया है। एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो देश में इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीनों बातें महत्वपूर्ण है। किसी बात को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना उचित नहीं है, पर पानी नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? पानी नहीं होगा तो गांव में किसानों के लिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? और पानी के सिवा पानी भी नहीं, पानी के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट और उसके साथ ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रॉक है, ज़मीन है, वो अलग अलग है। आप में से कुछ लोग जियोफॉर्मोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी का पढ़ने का मौका मिला होगा। और मिनरोलॉजी में एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। द डायमंड इज सपोज टू बी द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल। अब अभी ये जो रॉक का वर्गीकरण हुआ है उसमें हमारे महाराष्ट्र में, आपके नज़दीक यही नंदुरबार और धुले में बहुत अच्छा काम किया गया। मैं भी पानी पे पिछले 5-7 साल से काम कर रहा हूँ। हम बहुत छोटा काम करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो नाले होंगे, जो नदियाँ होंगी, उसको अगर हम खोलीकरण करेंगे और उसको ड्रेजिंग करेंगे, मटेरियल बाहर निकालेंगे और नीचे अगर जाएंगे और उसको नीचे ऐसे रॉक लेवल तक जाना है कि जो पानी पीने वाली नहीं है, पानी पीने वाली है। बहुत सी ज़मीन की लेवल ऐसी है कि जो कंक्रीट जैसा काम करती है। कितना भी पानी आया तो पानी अब्सॉर्ब नहीं करती, पानी नहीं पीती।
और इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जियोलॉजी का स्टडी करके नाले होंगे, नदियाँ होंगी, उनको रुंद करना पड़ेगा, विड्थ बढ़ानी होगी और उनकी डेप्थ नीचे जाकर जब तक पानी पीने वाली लेवल नहीं आती तब तक नीचे जाना होगा। और तब कहीं तो भी कंक्रीट का एक टी अगर तैयार कर दिया, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने फर्टिलाइज़र के बैग में सैंड भर के एक वनरई बंधारे तैयार किया और वो पानी रोका। परिणाम ये हुआ कि जहाँ 1 घंटा कुआं चलता था वहाँ 24 घंटे चलने लगा। मैं हमारे क्षेत्र में काफ़ी एग्रीकल्चर में हमारे कार्यकर्ता और मिलकर काम करते हैं। हमारी 3 चीनी मिलें हैं और 5 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक शुगर फैक्ट्री के बाजू में एक नाला था 9 किलोमीटर, उसको चेक डैम में बनाकर उसको खोली बढ़ाकर जब काम हुआ तो 3 गांव उसके क्षेत्र में आते थे। आपको ताज्जुब बताता हूँ कितना आश्चर्य है। और 1 घंटा भी पानी नहीं कुएं में चलता था। अब उन गाँव में 24 घंटे पानी चलता है और 24 घंटे पानी चलने से गांव की इकोनॉमी बदल गई। जिस गांव के लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे वहाँ हीरो होंडा आई, वहाँ गाड़ियाँ आई, 3 क्रॉप्स लेने लगे, गांव की इकोनॉमी बदल गई और गांव का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। और इसलिए आज हमारे सामने रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई है तो समुद्र में जाने वाले पानी को हम कैसे रोकें। प्रधानमंत्री जी के साथ में कुछ दिन पहले मैं एक राजस्थान और गुजरात में एक कैनाल बनाने की सोच रही हूँ वाटरवेज के लिए। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे कह रहे थे दमन गंगा जो है, मुझे पता नहीं है, हमारे ठाणे ज़िले से पानी आता है और वो पानी समुद्र में बह जाता है। वो पानी अगर रोक कर ठीक डाइवर्ट किया और गोदावरी में मिला और कुछ अगर मुंबई के पानी की समस्या उससे सुलझाई जा सकती है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन और समुद्र में जाने वाले पानी को रोके बिना मुझे नहीं लगता कि हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। बहुत अच्छी बात काम करने वाले हमारे वहाँ के लोगों ने दी थी कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। तो मुझे लगता है कि गुजरात में तो काम अच्छा हुआ है, पर यही बात जो वाटर स्कैर्सिटी जिस क्षेत्र में है वो बड़े प्रमाण पर करने की आवश्यकता है और इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने तय किया कि हम 111 नदियों को जलमार्ग में रूपांतरित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में आप जरूर ध्यान दीजिए। और ये जो जलमार्ग होंगे उसमें 3 मीटर का वाटर ड्राफ्ट हम साल भर मेंटेन करेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, बंकिंगहम कैनाल, बैक वाटर इन केरला, इसको हमारे पार्लियामेंट ने ऑलरेडी जलमार्ग के रूप में मान्यता दी है। पर अब 111 नदी जिसमें गुजरात की भी नदियां हैं और हमने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब मुंबई से दिल्ली अगर कोई माल भेजना है तो बहुत कठिन है, कॉस्टली भी है और कठिन भी है। पर मुंबई से दुबई और लंदन माल भेजना आसान है और सस्ता है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया उसी समय यशस्वी होगा जब हमारी 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट हम 12% तक लाएंगे, कम से कम 6% कम करेंगे। अगर हम रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपये अगर खर्चा आता है, रेलवे से जाते तो 1 रुपये खर्चा आता है और पानी से जाते तो 20 पैसे खर्चा आता है। और इसलिए हमारे देश में हमको जलमार्ग का विकास करने का काम प्राधान्य से करना है और मैं इस विषय की तरफ बहुत गंभीरता से पीछे लगा हूँ। हम गंगा में वाराणसी टू हल्दिया तक 1620 किलोमीटर जलमार्ग बना रहे हैं। 3 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं जिसका काम शुरू है वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज। 5 रोरो सर्विसेज बना रहे हैं और 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। सबका काम शुरू हो गया है। फरक्का का वाटर गेट का काम शुरू हुआ है और केवल इसके कारण बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा। और आज इसलिए हमारे लिए आवश्यकता ये है कि एग्रीकल्चर के और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वाटर मैनेजमेंट, पानी का नियोजन, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे यहाँ करीब 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है जो गुजरात में है। करीब 13 राज्य ऐसे हैं और 18% पॉपुलेशन ऐसी है, 78 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं
और 200 छोटे बड़े पोर्ट हैं। और इसमें इतनी संभावना है कि एक सागरमाला करके एक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हमने ली थी और एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने अध्ययन करके मुझे रिपोर्ट दिया है कि केवल सागरमाला के प्रोजेक्ट में 4 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगी। पोर्ट कनेक्टिविटी जो रोड और रेलवे से वो काम हमने शुरू किया है 4 लाख करोड़ का, और 8 लाख करोड़ केवल पोर्ट लेड डेवलपमेंट में 27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो एग्रीकल्चर से ज़्यादातर महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं उसका विकास करने की योजना बनाई है। अब ये 12 लाख करोड़ तो सागरमाला में है और इसके लिए पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं उन लोगों में से हूँ कि ये पत्रकार मुझे कभी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो ये कभी मेरी बात झूठ नहीं साबित हुई। तो 5 करोड़ मैंने सरकार से लिए थे जब महाराष्ट्र में था, और 4,000 करोड़ पब्लिक से लिए और 8,000 करोड़ के काम किए और 7.5 साल में पैसे वापस हो गए। तो पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। और इसलिए हमने तय किया, अभी जैसे मैंने कहा कि आप ये भी फाइनेंशियल मॉडल भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, और मैं आपको जानबूझकर ये बात बताऊंगा क्योंकि लो एम इज़ क्राइम, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स आई एम पॉसिबल। आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। आपके एंटरप्रेन्योरशिप को आप जगाइए, और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो आपने पढ़ा है वो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, वी कॉल इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और आपने जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का ज्ञान यहाँ से आपको मिला है, उसके आधार पर आप चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए निश्चित रूप से हर जगह पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल ढूंढने की बात है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है। अब मैं आपको बता रहा था, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो 5 करोड़ मेरे पास थे, मैंने 4,000 करोड़ में से बॉन्ड्स में गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी कहते थे तुम्हें कौन बॉन्ड देगा, तो सब फाइल रिजेक्ट हो गई। तो मैं मुख्यमंत्री के पास गया कि मैंने कहा आप मुझे परमिशन दो, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो नुकसान तो कोई नहीं होगा। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, मैं 400 करोड़ के लिए बॉन्ड इशू हमने निकाला, ओवर सब्सक्राइब हुआ, 1,180 करोड़ रुपए मिले। दूसरी बार 500 करोड़ का बॉन्ड इशू किया, 1,050 करोड़ मिले। और आज ऐसी स्थिति है, यानी ये पैसा मिलने के बाद 5 करोड़ पर 8,000 करोड़ के काम हुए और पैसे भी वापस हो गए। मुझे रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी उस समय कहते थे कि तुम हमसे भी होशियार निकले हो, क्योंकि इतना बड़ा पैसा मिला। और मैंने अपने जीवन में भी प्रयोग किया हमारे मित्रों के साथ। हमारा 800 करोड़ रुपए के काम है, कोऑपरेटिव है, शुगर मिल है, बायोमास के, केवल ग्रामीण में काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एकल विद्यालय चलाते हैं। हम कोई सरकार से पैसे नहीं मांगते। मैं आपको सच बताता हूँ, सरकार किसी भी पार्टी का हो ये अच्छे लोग हैं, पर सरकारी अधिकारियों को और सरकार से दूर रहो तो प्रगति और विकास हो सकता है। अब मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरा बोलना ठीक नहीं है, पर इससे दूर रहो। अपने भरोसे पैसा खड़ा करो, अपना काम करो। इनकी सब्सिडी भी नहीं होना, इनकी कोई मदद भी नहीं होना, और इनका इंटरफेरेंस भी नहीं होना। ये चलते गाड़ियों को बंद करने का इनको बहुत बड़ी PhD होल्डर बहुत है वहाँ। आपका कोई भी काम बंद कराने में 80% लोग उसी पे काम पे लगती है। इंक्वायरी करो और काम बंद करो। तो मैंने अपने क्षेत्र में 15,000 लड़कों को रोजगार दिया है और पैरेलल सरकार खड़ी की है। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करिए, और उसको उस विजन के साथ अगर आप काम करेंगे, जैसे ये डेयरी के क्षेत्र में काम हुआ है, हमें केवल डेयरी का काम नहीं जम पाया, हमारी सब सक्सेस स्टोरी हो गई, पर डेयरी में हमको काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं हमारे लोगों को भी लेके आया हूँ कि ये देखेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे सक्सेस हो। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप नौकरी देने वाले बनो। और टेक्नोलॉजी और पैसा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने कहा मैं 25 लाख करोड़ के काम करूँगा, बोले पैसा कहाँ से है। तो मैंने उनको कहा कि जैसे अभी हमारे पोर्ट में
सरकार बदलने से पहला फ़ायदा ये हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मेरे बारे में एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में कंक्रीट का काम ज़्यादा किया, पर मेरा कोई इंजीनियरिंग से संबंध नहीं और मुझे इंजीनियरिंग का कुछ समझता नहीं। जब ये इतने वर्ली बांद्रा और एक्सप्रेस हाईवे जैसे प्रोजेक्ट बने और टेक्निकल मैटर्स आए, तो लोगों को ये अब भी हमारे डिपार्टमेंट में भी एक मिस इम्प्रेशन है कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ। मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बुलडोजर हूँ। काम करते समय जल्दी होना चाहिए, इसको जानता हूँ कैसे करवाना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी इस साल मैंने कुछ नहीं किया। ये 12 मेजर पोर्ट के चेयरमैन आए और 3 हमारे फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, सब आए। मैंने बैलेंस शीट देखी, आधे से लोग घाटे में, दूसरे तो और वो भी कैश प्रॉफिट ने वो भी इधर उधर करके थोड़ा बहुत वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी। मीटिंग हुई शुरू, मैंने कहा मुझे 5 मिनट ही मीटिंग लेनी है। तो बोले सर नहीं, अपना एजेंडा रखो बाजू में। बोले मीटिंग क्या? मैंने बोला अगले बार मार्च में प्रॉफिट दिखाना, नहीं तो छुट्टी, आपका सामान तैयार करके आप जाने की तैयारी रखना। इतना ही मैंने कहा। क्या हुआ पता है आपको? इस साल 12 मेजर पोर्ट और 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हमारा प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, ऑल और इन प्रॉफिट। अब 1800 करोड़ का डिपार्टमेंट है, इस साल 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 8,000 करोड़ का होगा, उसके बाद और 10,000 करोड़ का होगा, तो 40-50,000 प्रॉफिट का पैसा है। 10,000 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में रखा। मैंने बोला तुम क्या पेंशनर हो क्या, फिक्स डिपॉजिट रखते हो? इन्वेस्ट करो उसको, मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन में इन्वेस्ट करो। और वो सब प्रॉफिट 10,000 जो है वो फिक्स डिपॉजिट है, 10 से 12,000 क्रेडिटर्स हैं। अब ये पकड़े तो 60-70,000 करोड़ हो गए, और 10,000 करोड़ 5 साल में बजट में आएंगे। और इसके साथ केवल हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट था, अभी भी है पोर्ट, उसके चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर थे। तो उन्होंने एक बड़ा पनवेल से वे JNPT 8 लेन का 3,000 करोड़ का कॉन्क्रीट रोड काम शुरू हो गया उसका। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया, ICICI बैंक से 12% से। तो हमारे पोर्ट में 4,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर डॉलर में है, प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर है। तो मैंने उनको कहा कि तुमने रुपीज़ में लोन लिया तो 12% इंटरेस्ट है, डॉलर में क्यों नहीं लेते हो? बोले मिल सकता है। अरे बोला आप इनकम टैक्स कमिश्नर के लेवल को आपको इतना भी नहीं समझता, मिलने क्यों नहीं मिलेगा? वो कहाँ से लोन लिया? ICICI बैंक से। मैं उठाकर चंदा कोचर जी को फ़ोन किया, उनको कहा कि ये आपका लोन 12% से आप डॉलर में देंगी? बोले बिल्कुल देंगी। बोले रेट क्या लगाएंगे? बोले वो लेबर प्लस 3%। मैंने बोला मैडम 3% का ही है। बोले कितना लगाना चाहिए? बोला आधा % से ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तो 3.5-4% वो बोल रहे थे। बाद में मैंने कहा टेंडर निकालो। अब टेंडर निकाला तो अभी उसमें जो रेट मिला है वो 2.75%। यानी अभी हमने 3,000 करोड़ रुपए 3.25% से लिए, तो रोड की वायबिलिटी जो थी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एकदम बदल गया, 12% के जगह 3.25% पे आया। तो 10 साल में कितने करोड़ों की बचत होगी आप देखो। तो अभी हमने तय किया कि ये जो डॉलर में 4,000 करोड़ टर्नओवर है, इसके अगेंस्ट मैंने उस बैंक से एग्रीमेंट किया कि 3.25% 50,000 करोड़ मुझे दे दो, तो देने के लिए तैयार हुआ। तो ये 70 और 50, 1,20,000 करोड़ रुपए है। फिर वो पूरी से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी, क्योंकि हम हर चीज़ PPP में करते हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और आपको अगर फाइनेंशियल मॉडल आपका ऐसे ही तैयार किया, जैसे रोड सेक्टर में भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैं लाखों करोड़ में बात करता हूँ, 1,000 करोड़ के साथ तो कोई काम ही नहीं करता। वो समय मत खराब करो। और ये इनको बता के बोलता हूँ, मेरे एक बार डायरी में लिख लेना करके, क्योंकि मुझे विश्वास है ये मुझे कभी सवाल नहीं पूछ सकते, आज तक नहीं पूछा, आगे नहीं पूछ पाएंगे। मैंने कहा 25 लाख करोड़ तो 25 लाख करोड़, मैंने कहा 41 किलोमीटर बनाएंगे तो होगा। तो ये जो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ये महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने दूध में काम किया, हनी में काम हो रहा है, बाम्बू में काम हो रहा। मैं अभी इंदौर था, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, बाम्बू में चाइना में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से पेपर बनता है, बाम्बू से पावर बनती है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है। तो वहाँ इंदौर में बाम्बू से जो कपड़ा बना था वो फैशन डिज़ाइनर्स ने तैयार करके, वो मॉडल्स ने उसका शो किया।
अब कितनी वेस्टलैंड पड़ी है। तो ये जो खेती के लिए जैसे दूध है, फिशरीज़ है, ये हनी है, बाम्बू है, और एग्रो वेस्ट से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा जैसा आपका दूध का एक्सपर्ट है, वैसे मैं एग्रो इसमें बायोफ्यूल का एक्सपर्ट हूँ। हम लोग इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक, इसकी बसेस को अभी मैं उसी का मंत्री हूँ, और हमने 7 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल, ये खाड़ी के देशों से लाते हैं। और इसके बजाय हमारे देश का किसान बिजली और पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है। जो शुगर केन जूस है या मोलाइसेस है, उससे इथेनॉल बनता है। और अभी हम लोग 1 करोड़, अभी हमारे यहाँ 4 करोड़ लीटर इथेनॉल हमने हिंदुस्तान ऑयल और भारत पेट्रोलियम में दिया है। हमारे विदर्भ में सब स्कूटर और कार में हमारा इथेनॉल है। और देश में आज पेट्रोल में 5% इथेनॉल ऐड हुआ है, और ये इथेनॉल मोलाइसेस से बन रहा है। अब सेकंड जनरेशन इथेनॉल आया है कि एनी बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, इसमें से इथेनॉल बन सकता है, और वो 23 रुपये लीटर बनता है। उसके 3 टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है, और ये सेकंड जनरेशन इथेनॉल बनेगा जो बायोमास से बनेगा। उससे अगर वो पेट्रोल में डालेंगे तो उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। और उसके साथ साथ हमने इतने अच्छे अच्छे प्रयोग हमारे देश में हुए हैं कि मैं नागपुर से हूँ। हमारी 5 साल पहले मैंने हमारे मेयर को और कमिश्नर को बुलाकर कहा कि ये जो टॉयलेट का पानी है, ये हमारे शहर का गंदा पानी हम बेचेंगे। तो दोनों हंसने लगे, बोले ये कैसे संभव है। तो आपको ताज्जुब होगा कि कोई चीज़ भी बेची जा सकती है, बेचने वाला चाहिए। हमने हमारे शहर का टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए रॉयल्टी हर साल मिलती है, महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। वो रिसाइकलिंग करके वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे भी आपका पावर प्रोजेक्ट मैंने विमान से उतरते समय देखा नज़दीक कहीं, तो अहमदाबाद का पानी अगर गंदा पानी रिसाइकलिंग करके अगर पावर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो अच्छा पानी यूज़ करने की जरूरत, हमने बेच दिया, उसको 18 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। फिर मैंने एक दिन अभी 2 साल पहले उनको कहा कि ये पानी तो बेचा आपने, पर इसमें मीथेन है। अब उस पानी से हम लोग मीथेन निकाल रहे हैं, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी पर 100 बसेस नागपुर की चलाने वाले हैं। उसका काम शुरू है, 100 बसेस, पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, और ये हो सकता है। और उसे अभी हमने कहा कि एक बायोडाइजेस्टर बनाओ, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और स्लॉटर हाउस की वेस्ट है जो बाजार समिति में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में है, वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकल सकता है, और CO2 से आइस क्यूब बन सकते हैं। हमारे यहाँ फिशरीज लोग हैं, फिशरमैन है, हमने उनके लिए आइस क्यूब बनाकर सस्ते में देने का, और CO2 से आइस क्यूब बनते हैं। अब CO2 से एक ने रिसर्च किया, वो CO2 से H2O बनाने की बात कर रहा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वो गाड़ी के लिए यूज़ करने वाले। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में रिसर्च के बिना, इनोवेशन के बिना, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बिना इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी। और जिसलिए खेती के साथ साथ खेती पूरक उद्योग जो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को ताकत दे सकते हैं, उसके तरफ ध्यान देना होगा। सोलर एनर्जी का उपयोग बड़े प्रमाण पर हो रहा है, और मुझे लगता है कि यही बात, मैं वो सपना देखता हूँ, और वो मुझे लगता है वो पूरा हो सकता है। कि एक समय मैं हर साल इसराइल के एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में जाता था, तो वहाँ देखा है मैंने, और आप में से भी लोग गए होंगे, कि ऐसा दिन आएगा कि लोग बड़े बड़े शहर अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली छोड़कर फिर अपने गांव की तरफ जाएंगे। मैंने अपने गांव में अपना घर बनाया। अभी आजकल मैं कभी कभी आता हूँ तो नागपुर से एयरपोर्ट से उतरकर अपने गांव चला जाता हूँ, वही 2 दिन रहता हूँ। वहाँ की हवा शुद्ध है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी अगर आएगी तो सब खुल जाएगा, अच्छी स्कूल्स आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स आएंगे। अगर किसान के हाथ में पैसा आएगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो इकोनॉमी बदलनी है, और ये बदल सकती है। इसके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड मैनेजरियल स्किल्ड जो आपके यहाँ मैनेजमेंट का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोऑपरेटिव में काम करता हूँ। हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बड़ी अच्छा, उसकी 4-5 ब्रांचेस है, 8000 लोग मेंबर है। अभी उसका 60 करोड़ का टर्नओवर है। तो उसके इनॉग्रेशन के लिए शरद जोशी जी को बुलाया था, तो उन्होंने मुझे कहा, ये नितिन तुम फालतू बात करते हो, ये कोऑपरेटिव वगैरह कोई विरोधी है उसके।
तो मैंने उनको कहा सर ये कोऑपरेटिव में वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, गुजरात में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छे वाक्य का यूज़ किया। उन्होंने कहा सक्सेस इन कोऑपरेटिव इज नॉट द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इज नॉट द सक्सेस ऑफ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स और द कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स, it is the success of a leadership, cooperative leadership, who knows, who understand the managerial skill, the financial management and appropriate vision for development, उनकी ये सक्सेस स्टोरी है। कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी है, पर डॉक्टर कुरियन नहीं आते तो क्या होता। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बहुत खुली, पोल्ट्री फार्म खुले, अंडे भी खाए, कोंबड़ी भी खाए, बेच बाच करके गए लोग। बहुत लोग ऐसे हैं कि कोऑपरेटिव में पता नहीं चला, सरकार से अनुदान लेते हैं, चले जाते हैं। पर इट इज़ ए सक्सेस ऑफ ए लीडरशिप हु अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक विजन फॉर डेवलपमेंट with the appropriate technology available in the world, the low-cost technology, creating more employment potential and maximum value addition, ये एग्रीकल्चर और रूरल में होगा तो मिरेकल दिखेगा। इसलिए जैसे कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ है, वैसे कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ ये भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। फ्रॉम लास्ट 4-5 years आई एम वर्किंग ऑन दिस मिशन, आई एम वर्किंग ऑन कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और ये कठिन नहीं है। मैं 100 मेगावाट से ज़्यादा ग्रीन पावर हम तैयार करते हैं। हमारे यहाँ गांव में सब कुछ हो सकता है। और इसलिए आपको जो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ज्ञान मिला हुआ है, वो अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ की प्लस और माइनस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। कन्वर्शन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो तो ताकत में और होगा, बट कन्वर्शन ऑफ वीकनेसेस का भी स्ट्रेंथ में रूपांतरित करना होगा। और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना हाथ में ली, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री और मैं चाबार गए थे, ईरान में गए थे, हम वहाँ पोर्ट बना रहे हैं। हमारे मुंबई से दिल्ली जितना डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस कांडला से चाबार का है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रेट 1 रुपये यूनिट है। और हम लोग जो यूरिया बना रहे हैं वो $15 पर mm³ है। और वहाँ का डॉलर में प्राइस ऑफर किए उन्होंने $2, उससे कम हम निगोशिएट कर रहे हैं। अगर यूरिया हम वहाँ बनाएंगे तो देश की 45,000 करोड़ सब्सिडी बच जाएगी और यूरिया की कीमत हम 50% से कम करके दिखा सकते हैं अगर वहाँ यूरिया की फैक्ट्री डालें। तो मैं पीछे लगाऊँ, मैं 2 बार ईरान जाके आया हूँ और हम लोग अभी एग्रीकल्चर हमारे केवल पेट्रोलियम और यूरिया, वहाँ नालको के लोग आए, उनका एग्रीमेंट हो गया। हमारी पावर की कॉस्ट 6.5 रुपये यूनिट है और वो 1 रुपया यूनिट है। तो स्टील और एल्यूमिनियम में जो पावर एक कैपिटल लगता है अगर वहाँ होगा तो सस्ते में होगा। और कांडला पोर्ट से अगर हम लोग वहाँ फर्टिलाइज़र बना के यहाँ लाएंगे तो पूरे देश में उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर देश के किसानों को, अगर सरकार का भी 55,000 करोड़ का फायदा, और केवल वहाँ गैस सस्ता लेने से कितना बड़ा चेंज हो सकता है। सो ये जो विजन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विजन में गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं जब एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था मुंबई पुणे के बीच में, तो मेरे सेक्रेटरी थे, बड़े ईमानदार थे पर बड़े ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव थे। वो कहते थे 4 लेन का बनाएंगे। मैं बोला एक्सप्रेस हाईवे 4 लेन का कैसे होगा, एक्सिस कंट्रोल। तो हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया गए। तो इंडोनेशिया में एक कॉरपोरेशन थी जसामारा, उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्ट एक बड़ा हाईवे बनाया था। तो मैंने देखा तो 8 लेन बना था। फिर मैंने उनको कहा कि ये कैसे 4 लेन नहीं ठीक, कितना 30 लेन बनाना चाहिए। वो बोले नहीं, बहुत विवाद करते रहे, उन्होंने इतना दिमाग खाया मेरा। और आखिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 16 लेन पर। और मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे अभी 16 लेन का, 8 लेन इधर 8 लेन बनाया। आज ही वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया। जो हाईवे मैंने 2000 में बनाया था वो 2030 तक कितनी संख्या बढ़ेगी इसका विचार करके बनाते रहते, तो वह 40 लेन का बनाना चाहिए था। अभी बड़ौदा टू मुंबई हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ज़मीन लेना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसानों की ज़मीन उनको भी दुख होता है। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेरे चार्टर अकाउंटेंट एक मित्र थे, वो कहते थे कि अगर आपको बंडी सिलानी है, यानी बनियन सिलानी है, तो कुर्ते का माप दो। यह 10 करोड़ की इंडस्ट्री डालनी है तो 10% डाल के नहीं होता, 30% आपके पास चाहिए। कब क्या अड़चन आएगी पता नहीं चलता।
और इसलिए आने वाले समय में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान, दैट इज नॉलेज, and conversion of knowledge into wealth is the vision with appropriate research available of world standard. दुनिया अब दूर नहीं है, इंटरनेट के कारण हम नज़दीक आए हैं और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में इनोवेशन के साथ आपके अहमदाबाद में गुप्ता है जो माशेलकर जी बहुत बार उसका उल्लेख करते हैं, मुझे वो देखने के लिए जाना था। वो इनोवेशन फाउंडेशन बहुत अच्छे, उन्होंने एग्रीकल्चर के कितने 16,000 20,000 प्रयोग वहाँ लाए हैं और ये हो सकता है। और गाँव में भी प्रयोग करने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, अनपढ़ है पर वो भी जानते हैं, उनमें ज्ञानों की कमी नहीं है। ये डिग्री लेकर और पीएचडी लेकर ये आदमी विद्वान होता है, ये सच नहीं है। आज ऐसे अनेक लोग हैं मेरे जीवन में मैंने देखे हैं कि जिनको बहुत बड़ा लोग मानते हैं, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जो कोई डिग्री मिली नहीं, कोई कॉलेज में नहीं गए हैं, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव होने के बाद मुझे पता चला ये बहुत बड़े हैं। सुशिक्षित बनना और सुसंस्कृत बनना, इसमें फ़र्क है। हमने ज्ञान को भी अर्जित करना और अच्छे इंसान बनना, इसमें फ़र्क है। हमको ज्ञान को भी हासिल करना है, टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी समझना है, अगले 50 साल की विजन को भी स्वीकार करना है। पर ये करके अल्टीमेट क्या करना है? सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अवर मिशन। जो आखिरी लोग हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे स्किल का, हमारी नॉलेज का उपयोग उनके जीवन को सुसह्य बनाने के लिए उपयोग होगा तो जीवन का कोई अर्थ होगा। और इसलिए ये बात सच है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। विवेकानंद जी ने कहा है आप जरूर कमाइए, पर हम हमारी कमाई करते समय उसके साथ साथ हमारे आजू बाजू के जो गरीब लोग हैं उनके जीवन को भी हम सस्टेनेबल कैसे बना सकेंगे? बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उनको भी रोजगार कैसे दे सकेंगे? उनके जीवन में सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकेंगे? ये भी कोशिश निश्चित रूप से हमने करनी चाहिए हमारा होने के बाद। डॉक्टर कुरियन जी यहाँ आए, उन्होंने खुद अगर इंडस्ट्री खोलते तो वो अपना बहुत बड़ा व्यक्ति बनते, पर आज उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए अपने जीवन के अनेक साल व्यतीत किए। उनके पीछे ये ध्यास नहीं था कि मेरा कैसा होगा, उनके पीछे भावना ये थी कि मेरे साथ ये गरीब अनपढ़ लोग जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, जिनका जीवन में सस्टेनेबल लाइफ नहीं है, उनके जीवन में अपने प्रयासों से, अपने अच्छी बातों से, अच्छी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, अच्छे मैनेजमेंट से उनके जीवन के बदलाव को हम कैसे कर सकते हैं, और उन्हें करके दिखाया। और मुझे लगता है कि इसी को लीडरशिप कहते हैं। एक हिंदी के कवि ने अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने जीवन में आप लोग यशस्वी हो, आपकी डिग्री जो मिली है उसके कारण आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके ज्ञान के कारण बहुत अच्छा सुख समाधान मिले। पर ये मिलते मिलते आपके परिवार के बाद हमारे आजू बाजू में, हमारे गांव में, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में जो बेचारे एक समय की रोटी नहीं खा सकते, जो भूखमरी और बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिनके जीवन में अंधेरा है, क्या हमारे नॉलेज के कारण, हमारे मैनेजर स्किल के कारण, हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च के कारण क्या हम उनके भी जीवन को बदल सकते हैं? अगर आपने आपकी यशस्विता के साथ उनके जीवन को बदलने की कोशिश की, तो जिस भावना से इस संस्था का निर्माण हुआ और जिसके लिए डॉक्टर कुरियन जैसे लोगों ने अपना जीवन दिया, जिन्होंने अनेक बड़े बड़े प्रकल्प खोलकर एक नई विकास की दिशा बताई, उस मार्ग में अगर आपने यही काम किया तो वो मार्ग और मजबूत बनेगा। जो देश की आवश्यकता है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, आर्थिक सामाजिक न्याय के बराबर ये जो आर्थिक न्याय की बात होगी, इकोनॉमिकल जो स्ट्रेचर है वो बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा,
तो सुखी, समृद्ध, संपन्न, स्वाभिमानी हिंदुस्तान का निर्माण होगा और जो दुनिया के नंबर 1 की ताकत होगी, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। इस बात पर आप जरूर विचार करिए, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for that highly inspiring speech. I now declare the 35th IRMA convocation closed. Please stay back for the national anthem. The audience is requested to remain standing until the chief guest, chairman, and director have left the auditorium.